Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will cover up functions of intermediaries and we'll be focusing on functions of wholesaler and retailer. Who is a wholesaler? Wholesaler is one who buys the goods from purchaser and he buys the goods in bulk. He buys as well as sell in large quantities. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है who purchase and sell in large quantities. He is the important linking pin between manufacturer and retailer. हम लोगों ने लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो वहां पे सी ऐसे लिखा था मैन्युफैक्चरर passes the goods to wholesaler, wholesaler passes to retailer, retailer passes to consumer, right? तो जो होलसेलर है वो किसके लिंकिंग पिन है? ही इज द लिंकिंग पिन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड retailer. So functions of wholesaler. These are the functions of wholesaler: buying, selling, storage. So let's study each one by one. Buying and selling. So what does wholesaler do? He buys as well buys the goods from the producer and in turn sells it to retailer. ठीक है, तो buying and selling is an important function of wholesaler. Also wholesaler basically stores the goods. He stored them in the warehouse and जब भी retailers को चाहिए at that particular time he supplies the goods to the retailer. But there is a time gap between when the retailers are going to demand the good. तो उस time gap को how he covers? He stores the goods safely. Then wholesaler also makes transportation arrangement. गुड्स को वेयर हाउसेज से डिलीवर करना रिटेल स्टोर्स तक it is possible only because of wholesaler because he make necessary transportation arrangement. This is the next important function, grading and packing. Wholesaler grade the goods according to certain standards. ठीक है, and also he packs them in convenient lots. Then comes financing. होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल एकोमोडेशन, दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स को भी और रिटेलर्स को भी. होलसेलर जनरली परचेज द गुड्स ऑन कैश बेसिस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. प्रोड्यूसर से तो जब ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग गुड्स जब खरीदते हैं प्रोड्यूसर से तो कैश बेसिस में खरीदते हैं. ठीक है, ऑल्सो जब होलसेल अगर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोड्यूसर्स को एडवांस की ज़रूरत होती है तो उनको एडवांस भी प्रोवाइड कर देते हैं. तो इस तरह ये मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं. अब जब ये आगे गुड्स देते हैं तो रिटेलर्स को, तो दे सेल द गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, so that's why they provide financial assistance. Then wholesaler assumes large number of risk. ठीक है, प्राइजेस चेंज हो जाना, रिस्क कैसे हो सकते हैं कि प्राइजेस में चेंज, डिमांड में ऑल्सो चेंज, गुड्स में गेट स्पॉइल्ड. और अगर वो गुड्स क्रेडिट पे दे रहे हैं आगे रिटेलर को, ठीक है, तो हो सकता है कि रिटेलर्स मे नॉट पे देम इन फ्यूचर, सो देयर आर चांसेस ऑफ बैड डेट्स. सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क विच आर associated. Then promotion. Wholesaler also helps in promoting the goods. ठीक है, they help in the dispersal of goods by the retailers. They also perform advertising, sales promotion activities, etc. So this way they help in promoting the goods uh, by advertising, other sales promotion activities, etc. Now coming to the functions of retailers. Who is retailer? अभी देखिए retailer जो है, retailer is the linking pin between wholesaler and consumer, right? Wholesaler performs various functions. Retailers perform various functions and they are in direct contact with the consumers as well as with the wholesaler. ठीक है, तो collection of the goods. Retailer purchase and collect the goods from large number of wholesaler. ठीक है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. टाइम यूटिलिटी. ठीक है, अब रिटेलर्स ने बहुत सारे होलसेलर्स के से गुड्स कलेक्ट किए और उनको अपने पास रखा तब तक जब तक कस्टमर्स डिमांड नहीं कर रहे. दे कीप वेराइटी ऑफ स्टॉक्स विद देम, so they create time utility this way. Also they perform transportation function by carrying the goods
from the wholesaler and handling to the consumers. फाइनेंसिंग भी ऑल्सो दे परफॉर्म फाइनेंसिंग फंक्शन कि कई बार कस्टमर्स जो हैं वो उनसे कैश में गुड्स नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं. तो दिस वे दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर. कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड क्या क्या यूजेस है प्रोडक्ट के, क्योंकि जो रिटेलर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कस्टमर के, इसलिए वो कस्टमर को एजुकेट भी करता है. देन ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कस्टमर. ठीक है, दिस इज वेरी मच इन रिलेशन टू द प्रीवियस पॉइंट, क्योंकि रिटेलर जो है वो लिंकिंग पिन है बिटवीन दी होलसेलर एंड दी कस्टमर. कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो कस्टमर को उसकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी रिटेलर्स को कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू पता लगती है. एंड द सेम इंफॉर्मेशन ही पासेस ऑन टू द मैन्युफैक्चरर थ्रू द होलसेलर. ठीक है, तो इसलिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर की पास ऑन करता है और उस इंफॉर्मेशन को मैन्युफैक्चरर यूटिलाइज करके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. राइट, these are the points of difference between wholesaler and retailer. This is very important. ये difference पहले भी आया हुआ है and my advice to you is to write the difference always in tabular form. Wholesaler deals in large quantity, अभी बताया था मैंने आपको. Retailer deals in small quantities. Wholesaler handles small number of items. ठीक है, और लेकिन रिटेलर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ आइटम, लार्ज वेराइटी रखता है. होलसेलर फर्स्ट आउटलेट इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर इज द सेकेंड आउटलेट. कैसे ये फर्स्ट आउटलेट सेकेंड आउटलेट? अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग कि यहाँ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसके बाद होलसेलर के पास गुड जाते हैं, फिर रिटेलर के पास जाते हैं, फिर कंज्यूमर के पास जाते हैं. तो इन दिस वे, तो होलसेलर क्या है? फर्स्ट आउटलेट. रिटेलर कौन है? सेकेंड आउटलेट. देन होलसेलर सेल टू रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स. ओके, होलसेलर रिसीव द गुड्स फ्रॉम हूम? अच्छा, इसमें होलसेलर सेल्स टू रिटेलर एंड रिटेलर सेल्स टू कंज्यूमर, वो तो इसी आप चेन से पता लगा सकते हो. देन होलसेलर रिसीव गुड्स फ्रॉम हूम? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. एंड रिटेलर को गुड्स कहाँ से मिलते हैं? होलसेलर. लोकेशन होलसेलर की जो है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ रिटेलर की जो लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्टली नियर द रेजिडेंशियल एरियाज. होलसेलर में विंडो डिस्प्ले इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रिटेलर के केस में विंडो डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. होलसेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है कम होता है, रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई है. होलसेलर डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, retailer do provide after sales services to the consumer. So with this our one topic is over, and next topic is factors affecting the selection of channel of distribution. This I'll be covering in the next video. Please do hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you.